Hello dear students, I hope you all are doing well and I hope you all are enjoying history lessons with me. So today we are going to begin the first chapter of the history, which is the French Revolution. Now as the name suggests, French Revolution, which means we'll be learning about a revolution which happened years ago or centuries ago in the France. Okay, so in this chapter we will be learning about that how France initially used to be a monarchy, how it turned into a republic, and then later on again under the leadership of Napoleon, it ended up being a dictator state. Okay, when I say state, children, so state does not mean for example in our country we have different states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, etc. State means the government. So in general when I say state, you can understand I'm talking about the country. Okay, so in this chapter we'll be looking at, first of all we'll be seeing the introduction part, that how France initially was a monarchy, then it became republic, and then finally turned into a dictator state, and how this happened. Then we'll be looking at how the French society used to be during the late 18th century, the struggle to survive, how people struggled to survive over there, how a subsistence crisis happened over there, then a growing middle class envisages an end to privileges. So we'll be learning about all of these things. Then the outbreak of the revolution, we'll be reading outbreak of revolution also. Under this we'll be reading how France became a constitutional monarchy. Initially it used to be a monarchy, then how it became a constitutional monarchy, we'll be reading in detail. Then how France abolishes monarchy and becomes a republic. Then, did women have a part in the revolution? Did women participated in the revolution? Yes. Did women participate in the revolution? Yes. So we will be reading that also. Then we'll be learning about the abolition of slavery. There used to be slavery system earlier, we have seen in the civics also. Then the revolution and the everyday life, how the life used to be. And finally, we will be looking at the conclusion part. Okay, so let us quickly begin the chapter with the introduction part, the French Revolution. So what happened, children? Please sit all of you straight and keep your book with you, keep a pencil with you. Take this chapter as if you are listening to a story. Then only you will be able to enjoy it. Okay, otherwise you will be confused. Then it will become a cliche that history is a boring subject. No, history is not a boring subject. So just relax. Sit nicely and take your book with you, keep a pencil and listen to me. Okay, so the French Revolution, the caption says the French Revolution. So what is happening? We are talking about the year 1789. So in this entire chapter, we will be looking at a period of 10 years, okay, which begins from 1789 and it goes on till 1799. So it is a 10 years period. So all the events whichever occurred in these 10 years, we will be having a look at it. So in 1789, in the wake of early morning, the city of Paris was in a state of alarm. Rumors spread that the king would open fire upon the citizens. People started gathering and they started breaking a number of government buildings in search of arms. The commander of Bastille was killed in the armed fight and the prisoners were released. What does it mean? So in the year 1789, in the early morning, you all know there is a city called Paris in France. It's very popular. So what happened in that city? There was a rumor that king would be, killing the citizens of its country. Now people got very angry. They started gathering at one place. All right, and then they started destroying government buildings. They were looking for those soldiers who were coming to kill them. There used to be a fort called Bastille. Okay, now the people were so angry that they killed the commander of the Bastille. Okay, and they released all the prisoners who used to be kept there. Okay, now people hated the Bastille as it stood for the despotic power of the king. लोग जो थे वो इस बेस्टाइल फोर्ट को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो है किंग की डेस्पोटिक पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. किंग्स क्या होते थे उस टाइम पे, बहुत डेस्पोटिक होते थे, मतलब निरंकुश. उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लेजिस्लेटिव नहीं थी, कोई मोनार्क, कोई लेजिस्लेटिव नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई जुडिशरी, कुछ भी नहीं होता था. राइट, तो लोगों को ये लगता था कि राजा जो है बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक है,
किंग इज वेरी वेरी डेस्पोटिक, सो पीपल हेटेड दैट प्लेस। उस प्लेस पे जो प्रिजनर्स होते थे उनको रखा जाता था, तो लोगों ने गुस्से में क्या किया, उसको तोड़ दिया और वहां जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करवा दिया। Then what happened? People protested against the high price of bread. फ्रांस में क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो इन्फ्लेशन रेट थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सो पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। लोगों ने क्या किया, उस महंगाई का विरोध करना शुरू कर दिया। वाई ब्रेड ओनली? बिकॉज सी इन इंडिया वी ईट जनरली रोटी, राइस एंड ऑल दैट, इन फ्रांस दे ईट ब्रेड्स generally. So people were protesting against the high price of bread. A new chain of events began which led to the execution of the king in France. अब इससे क्या हुआ, एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गया बैक टू बैक। जैसे ये आज एक रेवोल्यूशन हुआ, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया, लोगों ने उस फोर्ट को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट उसकी एक एक जो ईंट थी उसको उन्होंने बाजार में बेच दिया, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इफ यू गो टू द फ्रांस टुडे यू विल नॉट फाइंड बेस्टाइल फोर्ट का कोई भी आपको नामो निशान वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब इससे क्या हुआ, ग्रेजुअली एक न्यू चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुआ। उससे फाइनली क्या हुआ, जो किंग था फाइनली उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द बेस्टाइल फोर्ट, पीपल आर गैदर्ड हियर एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग इट। Now let us see how the French society used to be during the late 18th century, which is our next caption. French society during the late 18th century. Now we have seen that people were very angry, so they have, destroyed the Bastille fort, okay, and then a revolution took place, right? But how all of these things happened, let us quickly have a look at that, okay. So Louis XVI in 1774 ascended the throne of France. Means in the year 1774 Louis XVI became the new king of France, okay. Financially France was drained because of the war, okay. Financially जो है फ्रांस की हालत थी वो wars के कारण खराब थी। Now which all wars? फ्रांस और ब्रिटेन के वॉर चला था पहले, ठीक है। देन America was fighting with Britain. Okay, you all know America used to be a colony of Britain earlier. तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी ब्रिटेन से जीतने में, ओके। नाउ फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प तो कर दी जीतने में, लेकिन उनकी खुद की हालत उस वॉर में उनकी हेल्प करने के कारण ख़राब हो गई। पहले उनका खुद का ब्रिटेन से वॉर चला तो हालत उनकी ख़राब हो गई, क्योंकि वॉर्स में क्या होता है, हैवी कैजुअलिटीज़ होती हैं और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, राइट। तो पहले ब्रिटेन से उनकी लड़ाई हुई तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। देन उस हार का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका को फाइनेंशियल एड्स दिए और अमेरिका को पैसा दे करके ब्रिटेन और अमेरिका का जब वॉर हुआ तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गया। इससे फ्रांस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनको एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि उन्होंने हमने ब्रिटेन को अब फाइनली क्या कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया। लेकिन इससे फ्रांस की इंटरनली हालत कंप्लीटली ख़राब हो गई, क्योंकि अब उनका खजाना बिल्कुल खाली हो गया, राइट। सो फ्रांस अंडर लुई 16 हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। एज इट इज़ आई टोल्ड यू, अब हेल्प करने से क्या हो गया, फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो गई। अब क्या करेंगे जब फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो जाती है, किंग्स पहले कैसे अपना इनकम जनरेट करते थे, टैक्सेस इम्पोज करके, राइट। सो लुई 16 विल ऑल्सो डू द सेम। What he will do? He will increase the taxes. उससे उनके खर्चे निकलेंगे ना, कैसे उनके रेगुलर खर्चे कैसे निकलते हैं, टैक्सेस से। जब किंग्स लोगों पे टैक्सेस लगाते हैं तो उससे उनकी इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है तो वो अपने खर्चे उससे निकालते हैं। सो अब क्या होगा, टैक्सेस वर इंक्रीज्ड। टैक्सेस तो हमेशा से थे, अब टैक्सेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सो टैक्सेस वर इंक्रीज्ड टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। अच्छा, किंग्स को क्या होता है, आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती है तो उसकी भी बहुत हाई कॉस्ट होती है ना। तो मेंटेन करनी है आर्मी तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। द कोर्ट को भी उनको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है सबको। उनके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या जितने भी उनके सर्वेंट्स होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, राइट। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज भी चलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी चलती हैं, तो उन सब के पास भी पैसा कहाँ से जाता है, किंग के पास से जाता है ना। जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल हमारे कंट्री में है तो वो कौन रन करता है, उनको गवर्नमेंट, राइट। और उस ज़माने में गवर्नमेंट सारी कौन थी, किंग ही होता था, तो किंग ही उनको रन करते थे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या किया गया,
टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, टैक्सेस को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। अब इससे क्या हुआ, द कंट्री ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। अच्छा, टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होगा, जिन लोगों पर टैक्स लगे उनको गुस्सा आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से था, किन लोगों को टैक्स देना पड़ता था और किन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो लेट अस सी, द कंट्री ऑफ फ्रांस एज आई टोल्ड यू वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। ओके, अब ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेट तो क्या था, क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते थे, जैसे फादर होते थे चर्च में, यू ऑल नो ना, चर्च में क्या होते हैं, फादर होते हैं ना, चर्च में बिशप्स होते हैं, राइट। तो ये जो फादर बिशप्स ये थे, ये किसके अंदर इंक्लूड होते थे, फर्स्ट स्टेट में जो होते थे क्लर्जी। इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे, रादर ये टैक्स लगाते थे लोगों पे। फिर सेकेंड स्टेट के अंदर कौन थे, नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, जिनके पास क्या होती है, ज़मीनें होती हैं, है ना। तो इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, ये वहाँ लोगों से काम करवाते थे और बदले में उनको बहुत कम पैसे देते थे। साथ ही साथ ये भी लोगों पे बहुत सारा दुनिया भर का टैक्स लगा देते थे जो इनका मन होता था। फिर आते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन आते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो मर्चेंट्स होते थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे, पीजेंट्स यानी कि किसान, आर्टिसंस जो कुछ ऐसे चीज़ें बनाते हैं, वो शिल्पकार, स्मॉल पीजेंट्स जो छोटे छोटे वर्ग के किसान होते थे, वो जिनको कम लेबर मिलता था, लैंडलेस लेबर जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है। लैंड किसके पास है, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, और इनके पास लैंड नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उनके फार्म्स में जाके क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और इनको बिल्कुल कम वेजेस मिलता है। ओके, एंड देन कौन आते थे, सर्वेंट्स। तो ये सारे जो होते थे ये थर्ड स्टेट के अंदर इंक्लूड होते थे, और सारा टैक्स किनको देना पड़ता था, इनको ही देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी किसकी थी, इन्हीं लोगों की थी, राइट। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी इनके ऊपर है, राइट। इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, इनको कोई टैक्स नहीं देना, इनफैक्ट ये टैक्स भी लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इससे हालत खराब होगी। नाउ सी व्हाट हैपेंड, 90% of the population was dominated by peasants, but only a small number of them owned the land they cultivated. अब सबसे ज़्यादा population किसकी है, थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में कौन आ रहे हैं, peasants भी आ रहे हैं, राइट। अब उनके पास सबसे कम लैंड है, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, दूसरों के लैंड में जाके काम करेंगे, उनको बहुत नॉमिनल वेजेस मिलेगी और उस वेजेस पे भी क्या है, टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, उनको, लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, राइट। अब क्या हो रहा है, 60% वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% जो लैंड है वो किसके हाथ में है, नोबल्स के पास में है, चर्च के पास में है, और जो बाकी रिच लोग हैं थर्ड स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनके पास 60% लैंड है। तो ये दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सोसाइटी, राइट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन दी सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, लोगों में गुस्सा तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। The clergy and the nobility, members of the first two states, enjoyed certain privileges by birth. Clergy class जो थी first state और जो nobles थे second class, उनको कुछ privileges मिले हुए थे by birth. Now which are those privileges? These group of members were exempted from paying taxes and enjoyed feudal privileges. अब ये जो दो states थे, clergy और feudal lords, या फिर जिनको हम nobles बोल रहे हैं, nobility class, these guys they need not pay any tax. Okay, इनको कोई taxes नहीं देने थे, rather they enjoyed feudal privileges. एक तो उनको फ्री में लैंड मिल गई, राइट, फिर वो क्या कर रहे हैं, लोगों पे टैक्सेस भी लगा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे जो उनको मिले हुए थे बाय बर्थ। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ओके, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, जो आर्टिसंस थे, जो पीजेंट्स थे, जो लेबरर्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको क्या करना है, थर्ड स्टेट को, दे हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ओके, as it is told you about the state, when I say state it means the government we are talking about. अब उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन है, कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किंग ने जो बोल दिया वही सही है ना। अब इन पे क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। अब कौन सा टैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल। Now I'm very bad at French, so those who are who know French, they can excuse me here. Okay, so and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt and tobacco. अब ये क्या कर रहे हैं,
एक तो डायरेक्ट टैक्स हो रहा है, उसके अलावा जिसकी जो मर्जी थी वो टैक्स उन पे लगा रहा था। चर्च अलग टैक्स लगा रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स अलग टैक्स लगा रहे थे, है ना, किंग तो एज इट इज टैक्स ले ही रहा था। इनफैक्ट एवरीडे कंजम्पशन की जो चीज़ें थी, सॉल्ट और टबैको, उन पे भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, दिन पर दिन लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, this picture, the nobleman in the picture, the nobleman is the spider, the peasant is the fly. Okay, now this is some nobleman, he is the noble. Okay, he is sitting here like the, you know, lord or the king. Now he is, who is he? He is a poor man. Now this poor fellow brings everything like grains, fruits, money, salad, etc. But this fat lord sits there ready to accept it all. वो फिर भी उस जो गरीब आदमी है वो सारी चीज़ें ला रहा है. Still he is taking everything from him, and you know he still does not have compassion. He accept everything and he doesn't even care to grace him with a look. वो उसको एक एक अच्छे look भी नहीं दे रहा है, right? So this shows how the society was. The more the devil has, the more he wants. उसके पास already बहुत कुछ है, right? But फिर भी उसको और ज़्यादा इन गरीब लोगों से चाहिए. So the condition of the society was very very bad. और दिन पर दिन taxes increase होने के कारण लोगों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई. तो इससे लोगों में क्या हुआ, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया. Now the struggle to survive. अब लोगों के पास पैसे नहीं है, राइट? और जो उनको वेजेस मिल रहे हैं उस पर भी टैक्सेस लग रहे हैं. तो लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं. और ऊपर से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू अ रैपिड इंक्रीज फॉर फूड ग्रेन्स. पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी ना. पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट? लेकिन अब क्या हो रहा है, फसलें तो उतनी ही हो रही है जितनी पहले हो रही थी, राइट? अब वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी. आज की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे. आज वी हैव सो मेनी एडवांसमेंट्स इन द सोसाइटी, राइट? अब आजकल कितने ज़्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं, राइट? फ्रूट्स भी कैसे इंजेक्शन से बनकर आ रहे हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांसमेंट आ गया है. 18th सेंचुरी में ऐसा कोई एडवांसमेंट, कोई टेक्निक भी नहीं आई थी. तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे. So the production of grains could not keep pace with the demand, due to which the price of bread rose rapidly. अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो कम ही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट? तो चीज़ें कम है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी. महंगी हो जाएंगी तो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अब लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए खाली. ड्यू टू लो वेजेस पेड टू द लेबरर्स, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. अब इससे क्या होगा, लेबर्स जो हैं जितने भी, उनको वेजेस क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही हैं, है ना. लो वेजेस मिल रही हैं लेबरर्स को, तो उससे जो रिच है वो तो और रिच होता जाएगा, और जो पुअर है वो और पुअर होता जाएगा. तो इसने क्या कर दिया, रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. अब क्या होता था कि फ्रांस में बहुत ठंडी पड़ती है, वी ऑल नो, है ना. इट्स द वेदर इज़ वेरी हार्श देयर, द क्लाइमेट रादर आई शुड से इज़ वेरी वेरी हार्श समटाइम्स. तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या कभी बारिश हो जाती है, या कभी अकाल पड़ जाता है. तो उससे क्या हो जाती है, फसलें और होना कम हो जाती हैं. तो फिर अगेन प्रोडक्शन क्या हो गया, कम, डिमांड हो गई ज़्यादा, तो चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई. तो जो गरीब लोग हैं वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बेचारे स्ट्रगल ही करते रहेंगे पूरा टाइम. Then how subsistence crisis happens. Now we can understand it with this small diagram. See क्या हुआ, bad harvest, कोई भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई, हार्श विंटर्स हो गए, या बेमौसम बरसात हो गई, या ओले पड़ गए. तो उससे क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. क्योंकि जब फसल कम होगी प्रोडक्शन कम होगा. प्रोडक्शन क्या हुआ है इस बार, प्रोडक्शन क्या है, जैसे कम है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा. अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ऑफ कोर्स, है ना. प्रोडक्शन तो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी. अब जब ब्रेड या खाने पीने की जो डेली की चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अब ये चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी तो जो पुअर पीपल है, जो लोअर क्लास है, दीज पुअर पीपल, दे विल नॉट बी एबल टू बाय द ब्रेड. तो वो क्या होगा, भूख से मर जाएंगे.
फिर क्या हो जाएगा, बीच में कोई ऐसा बीमारियां आ जाएंगी उस ज़माने में. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी. यू ऑल नो कि उस टाइम पे कोई ऐसा मेथड भी नहीं था साइंटिफिक की बीमारियों को भी जल्द से जल्द रोका जा सके, राइट. थैंकफुली कोरोना इतना लेट आया, अगर उस टाइम पे आता तो एवरीबडी वुड हैव डाइड. तो उस टाइम पे इतने टेक्निक्स नहीं थे, इतने साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, तो फिर बीच बीच में डिजीजेज आ रही थी, एपिडेमिक्स आ रहे थे, तो उससे भी लोग मर रहे थे. तो ये एक पूरा क्राइसिस चल रहा था जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस. इसका क्या मतलब है कि अब एक मिडिल क्लास, एक नया वर्ग उभर कर आ रहा था जिसका नाम क्या था, मिडिल क्लास. लाइक आई टोल्ड यू, इन द थर्ड स्टेट देयर वर लॉयर्स, राइट, देयर वर मर्चेंट्स ऑल्सो. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी इसी टाइम पे क्या चल रहा है, फेज चल रहा है. तो क्या एक नया क्लास निकल कर के आ रहा है, मिडिल क्लास. तो वो बोल रहा है कि अब ये जो प्रिविलेजेस है इनको क्या करो, खत्म करो. तो लेट अस सी. Peasants used to participate in revolts against taxes and food scarcity. अब जो peasants हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं कि टैक्सेस को क्या करो, कम करो, और ये जो फूड की स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मीन्स जो फूड की कमी है ना, उसको दूर करो. Group of the third state had become prosperous and had access to education and new ideas. अब ये जो थर्ड स्टेट है इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, इसके अंदर कुछ लॉयर्स भी थे, है ना, कुछ इसके अंदर मर्चेंट्स भी थे. तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़े से प्रॉस्परस हो रहे हैं, इनके पास ये दे कैन एक्सेस एजुकेशन ऑल्सो. तो इनके पास क्या आ रही है, ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं. जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास नए आइडियाज़ भी आते हैं ना, राइट. तो इनके पास नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बन रही है. सी, इस फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक ये सोशल और इंटेलेक्चुअल कॉज भी हम इसको बोल सकते हैं. इन द 18th सेंचुरी न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड. अब ये न्यू सोशल ग्रुप्स कौन से हैं, टर्म्ड दी मिडिल क्लास. अब ये एक मिडिल क्लास निकल करके आ रहा है. हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड and by manufacturing woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer or bought by the richer members of the society. Bought by the richer members of the society मतलब अब ये मिडिल क्लास के लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये ट्रेड कर रहे हैं. जैसे आपको सिल्क रूट का नाम सुना है, तो ट्रेड होता था. जैसे हमारे यहाँ से भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेकर जाते थे अपने देश में, फिर वहाँ पर उसको सेल किया करते थे, राइट. तो इस तरीके से ओवरसीज ट्रेड हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. तो अब ये ट्रेड कर करके बहुत पैसा कमा रहे थे. और क्या कर रहे थे, वोलन क्लोथ्स बेच रहे थे, सिल्क के कपड़े बेच रहे थे. किन लोगों को, अमीर लोगों को. तो पहले के टाइम पे अमीर लोग इसको ना इट वाज ट्रीटेड एज द सिंबल कि कोई सिल्क अगर पहन रहा है तो दैट पर्सन इज रिच. तो वो क्या कर रहे थे, अमीर लोगों को ऐसी चीज़ें बेच बेच के पैसा कमा रहे थे. तो एक नया ग्रुप उभर करके आया, उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल क्लास. The third state included professions such as lawyers or administrative officials. अब इसमें कुछ lawyers भी थे और कुछ administrative officials भी थे. Administrative officials मतलब जो government का कुछ काम देखते थे. A person's social position was dependent on their merit. अब किसी भी person का social position कैसे जज करोगे आप, क्या लग रहा था उनको कि कैसे होना चाहिए, कि उनके talent के हिसाब से. All these groups were educated and believed that no group in society शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. अब ये जो मिडिल क्लास निकल करके आ रहा था, ये एजुकेट भी हो रहा था. एजुकेशन से इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, नए आइडियाज़ आ रहे थे. तो ये सोच रहे थे कि कुछ लोगों को जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिली हुई है वो क्यों मिली हुई है, दिस शुड नॉट हैपन, राइट. नोबडी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि अब ये भी एजुकेट हो रहे थे. रादर इन्होंने क्या बोला, अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. किसी का सोशल पोजीशन आप कैसे जज करोगे, किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट ऑफ द पर्सन, राइट, नॉट बाय बर्थ. A new form of government was proposed by Rousseau based on a social contract between people and their representatives. तो रूसो जो थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइट. तो इन्होंने क्या बोला कि एक नया इन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया कि भाई हमारे यहाँ भी क्या होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट. एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे. तो इन्होंने कहा कि एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, लोगों का और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. बेसिकली ये क्या चाह रहे थे कि अब हमारे पास भी क्या आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल कर सकें. Similarly, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. अब Montesquieu भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइट.
तो इन्होंने क्या प्रपोज किया कि क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होने चाहिए, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में है, राइट। इन द यूएसए दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स। अच्छा, उस टाइम पे क्या हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन से अपना क्या ले लेता है, वापस एक इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है, यूनाइटेड स्टेट्स एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, तो उन्होंने ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया होता है, राइट। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, राइट। दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा होता है उससे हम भी सीख लेते हैं ना, तो सिमिलरली उन्होंने भी यूएसए से इंस्पायर होके उन्होंने बोला कि हमें भी, वी ऑल्सो नीड अ गवर्नमेंट, वी ऑल्सो नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सब के बीच में क्या हो रहा है, पीपल आर स्ट्रगलिंग, राइट, टू सर्वाइव। एक मिडिल क्लास भी निकल करके आ रहा है, राइट। इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सारे सोसाइटी में आ रहे हैं, दे आर सजेस्टिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इन सब के बीच में जो लुई 16 है, व्हाट इज ही प्लानिंग, लुई 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस। अब लुई 16 जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं कि अब हम और नए टैक्स लगाते हैं जिससे कि हमारे खर्चे निकल सके। तो अब लोगों को गुस्सा आएगा या नहीं, डेफिनेटली आएगा। तो लुई 16 ने प्लानिंग कर ली कि अब हम नया टैक्स लगाएंगे। अब नया टैक्स अगर लगाएंगे लुई 16 तो क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा। सो नाउ वील बी रीडिंग अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। अब क्या होता है, फ्रांस के अंदर द मोनार्क, मोनार्क मीन्स द किंग, सो किंग डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो किंग था वो अकेला ये डिसीजन नहीं ले सकता था। मोनार्क मीन्स यू ऑल नो द किंग, किंग हमारे कौन है, लुई 16। तो दिस मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ये जो किंग है वो टैक्सेस क्या कर नहीं लगा सकता है अकेले, क्या करना पड़ेगा टैक्स लगाने के लिए, टू इम्पोज टैक्सेस they had to call a meeting of the States General, a political body which the 3 states sent their representatives. अच्छा, क्या करेंगे किंग टैक्स लगाने के लिए, किंग हैज़ टू कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। ओके, स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाएंगे। अब स्टेट्स जनरल क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 states सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने 3 states के बारे में पढ़ा। फर्स्ट तो थे हमारे क्लर्जी, ये कौन थे हमारे, फर्स्ट स्टेट। फिर सेकंड स्टेट में कौन थे हमारे, फ्यूडल लॉर्ड्स। ओके, उसको हमने क्या बोला था, फ्यूडल लॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स वर नोन एज नोबिलिटी। ओके, नोबिलिटी। ओके, फिर हमारे थे थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के अंदर कौन आ रहे थे, जो बाकी के बचे हुए लोग थे, राइट। तो जो बाकी के पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, वो सब आ रहे थे थर्ड स्टेट के अंदर। अब इन all 3 states were, they all were called together for this states general meeting. अब इस मीटिंग में क्या करेंगे वो, so they will be passing the proposals for the new taxes. ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी उस मीटिंग के अंदर they will pass the proposal कि भाई हम ये टैक्स लगाने वाले हैं, तो आप इसको अप्रूव कर रहे हो क्या, ठीक है। अब लुई 16 ने ऐसी एक मीटिंग बुलाई, कब, 5 मई 1789 को उन्होंने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। ही कॉल्ड एन असेंबली टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। ओके, तो अब इस मीटिंग में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर प्रेजेंट एंड द थर्ड स्टेट was represented by its prosperous and educated members. अब हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेट के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हैं, कुछ वेल्दी लोग भी हैं। तो अब इनकी मीटिंग आ गई है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। ओके, अब इस मीटिंग में ये सारे लोग प्रेजेंट हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड 1 वोट। अब ये जो 3 स्टेट है, इन तीनों के पास क्या है, एक वोट है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों के पास क्या है, 1-1 वोट है। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये क्या कर रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं लोगों से। तो अगर किंग नया टैक्स लगाने के लिए बोलेगा तो हमेशा इनकी तो क्या होगी, मेजॉरिटी होगी ना। इनका क्या हो जाएगा, 2/3, इनकी क्या हो गई, मेजॉरिटी। अब ये तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे इनसे। ये अगर बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जाए तो इनकी क्या हो गई, 1/3 मेजॉरिटी। उसको कौन पूछेगा, मेजॉरिटी हमेशा किन की होगी, इन्हीं लोगों की होगी, राइट। तो ये एक प्रिंसिपल था कि हर स्टेट का एक ही वोट आएगा। लेकिन अगर हम इसका बाइफिकेशन देखेंगे तो हमेशा मेजॉरिटी फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों की होगी, थर्ड स्टेट वालों के पास तो कभी मेजॉरिटी नहीं होगी। ओके, दिस इज द सिस्टम, दिस वाज द सिस्टम।
But representatives from the third state demanded each member would have one vote. अब representatives जो थे third state के, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जितने भी यहाँ पर मेंबर आए हुए हैं उन सबको आप एक एक वोट दो, राइट? तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? उन्होंने ये डिमांड कर दी, बट दिस डिमांड was rejected. So members of the third state walked out to protest. उनकी ये जो डिमांड थी इसको उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट. क्या कर दिया? रिजेक्ट. अब रिजेक्ट कर देंगे तो लोग इतने दिन से भरे पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टैक्सेस उन पे नित नए लगाए जा रहे हैं मनमाने, तो लोग क्या होंगे? परेशान होंगे तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे. तो थर्ड स्टेट वॉकड आउट टू प्रोटेस्ट. अब थर्ड स्टेट वाले बहुत गुस्सा हो गए और वो वहाँ से चले गए. तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे. ओके. दे swore not to disperse till a constitution drafted for France that would limit the powers of the monarch. उन्होंने कसम खा ली कि अब हम हमारे कंट्री में क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक जो हमारा किंग है उसकी पावर्स को लिमिट नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये रिवॉल्यूशन करेंगे. इसको क्या बोलते हैं? इसको टेनिस ओथ भी बोला जाता है. ठीक है. Due to the severe winter, bread price rose and people had to spend hours in long queues. अब क्या हुआ? वही वापस सर्दियों का मौसम आया, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स आए, और सीवियर विंटर के कारण क्या हुआ? द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड्स गॉट रियली हाई. ब्रेड बहुत महंगी हो गई. लोग घंटों तक ब्रेड लेने के लिए क्यूज़ में खड़े रहने लग गए, परेशान होने लग गए. वही अगेन, डिमांड वॉज हाई, प्रोडक्शन वॉज लेस. फिर एक क्या रूमर फैला? Rumors spread that the lords of the manor hired bands of brigands to destroy the ripe crops. एक रूमर फैल गया कि अब थोड़ी देर में क्या होने वाला है? किंग एक आदेश देगा और उससे जितने भी पकी हुई फसलें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. तो किसान बहुत डर गए इससे. In fear, peasants started looting hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. Nobles fled from their homes. अब किसानों ने जब डर गए तो उन्होंने क्या किया? सारा ग्रेन तो लूट लिया, और जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स की जो ज़मीनें थी चर्च के नाम पे या नोबल्स के नाम पे, उन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, और जो नोबल्स थे वो डर के घर से भाग गए. ओके. Louis XVI accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would now on be checked by a constitution. अब क्या हुआ? जब लोगों ने कसम खा ली कि हम क्या करेंगे, या तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे. तो लुई 16 ने बोला कि ठीक है, और उन लोगों ने जो कसम खाई उन सब ने एक असेंबली बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली. ठीक है. उन्होंने क्या किया? लोगों ने मिलकर के एक नेशनल असेंबली बनाई. अब किंग भी बहुत प्रेशर में आ गया, किंग को भी डर लगने लग गया कि लोग बहुत गुस्सा है, जब उन्होंने इतने सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जला लिए, फसलें सारी लूट ली, तो अपना भी नंबर आ सकता है कभी, है ना. तो किंग डर गया, और किंग ने बोला कि ठीक है. लुई 16 ने ये जो नेशनल असेंबली थी इसको रिकॉग्नाइज किया और एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठीक है, अब हमारे जो पावर्स है वो कौन चेक करेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा, और जो भी मेरे पावर्स होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? चेक करेगा, है ना. ठीक है. अब थोड़ा सा कंडीशन ठीक हुई. ओके. द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस ऑन 4 अगस्त 1789. तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, कोई फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं होंगे और कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे. ये उन्होंने बोला 4 अगस्त 1789 को उन्होंने ये पास किया आदेश. Now, tails were abolished and lands owned by the church were confiscated. What does it mean? Tails was what? Now, again, I'm telling you, it's a French word, so please excuse me if I don't pronounce it well. So, tails were the taxes. Now, the taxes were finished, abolished. Okay, there would be no taxes now onwards. And lands owned by the church were confiscated. Okay, now National Assembly ने क्या किया? उन सारे lands को confiscate कर लिया. Okay, now you can see in the picture, I told you about this tennis oath. So all people are gathered together and they have taken the oath that now what do we want? We want a national assembly now. We want a constitution that would limit the powers of the king. Okay. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.